देखो, whenever he asks you to make a dot and cross diagram of an ionic compound, either he gives you the formula with the question or he demands you to make the formula first. Without formula of an ionic compound, you cannot exactly make the dot and cross diagram of ionic compound. अगर बनाओगे भी तो it will have something missing. तो वो उसके मार्क्स कहीं ना कहीं कट रहे होंगे. और अगर आपके माइंड में फॉर्मूला चल रहा है तो मे बी अगर आप उसके हिसाब से सही बना लो तो एक अलग बात है. उसका बेटा आपकी आवाज बहुत डिस्टर्ब आ रही है, तो आपका माइक दूर है आपसे. मंदशा, आप कुछ पूछ रहे हो? जी हिबा. सर ये जो फॉर्मूला होता है इसकी बेस पर हम डॉट एंड क्रॉस डायग्राम बनाते हैं, राइट? जी. ओके फाइन. देखो मैं बताता हूँ फॉर्मूला कहाँ पे काम आता है. yes yes उसका chemical formula for aluminum oxide is Al2O3. How we make the chemical formula? We know aluminium is from group 3. It has a charge of 3 positive ion. Oxide is from oxygen, which is from group 6. It has a charge of 2 negative. We cannot further simplify 3 and 2, right? So there is no need to further simplify 3 and 2 because the common number between 3 and 2 is 1. Dividing both 3 and 2 by 1 would give the same result. So there is no need to show this. The 3 with aluminium will go under the subscript of oxygen and 2 with oxygen will go under the subscript of aluminium. So the formula would be Al2O3. Now we know that aluminium is from group 3. It means it has 3 valence electrons and oxygen is from group 6. So oxygen must have valence electrons. We can also make the electronic configuration for aluminium. It is 2, 8, 3. And for oxygen, it is atomic number is 8. So electronic configuration is 2, 6. So aluminium has to lose 3 electrons from its valence shell. So now it will be left with 8 electrons in its second last shell, which will become its valence shell now. तो पहले हम क्या करेंगे? We will make the aluminium ion directly ना valence shell show कर देते हैं. देखो ये aluminium ion है. अब इसके इनर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, वो शो करने की जरूरत नहीं है. आई एम जस्ट आस्किंग यू टू शो ओनली outermost shell. Show only valence shell. Valence shell is also known as outermost shell. Right? So the second last shell of aluminium is now its last shell, which has 8 electrons. And the charge over aluminium ion is 3 positive. अच्छा, अब जो ऑक्सीजन है, it has 6 valence electrons. तो उसके इलेक्ट्रॉन हम डॉट से शो कर रहे हैं. लेट्स से 1 2 3 4 5 6. सो ऑक्सीजन नीड्स ओनली 2 मोर इलेक्ट्रॉन्स. तो ऑक्सीजन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और वो कहाँ से आ रहे हैं? एल्यूमिनियम से आ रहे हैं. वो क्रॉस से शो करेंगे और ऑक्सीजन पे जो चार्ज आ जाएगा बाय फॉर गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन वुड बी 2 नेगेटिव. Right? But in the formula, we know there are 2 aluminium atoms, 2 aluminium ions, and 3 oxide ions.
तो या तो मैं दो दो एल्यूमिनियम आइन बनाऊं। देखो एक तरीका तो ये है इसकी बॉन्डिंग बनाने का कि हम दो एल्यूमिनियम आइन बनाएं इस तरह के, और तीन ऑक्साइड आइन बनाएं, क्योंकि फॉर्मूले में वी हैव टू एल्यूमिनियम आइन एंड थ्री ऑक्साइड आइन। लेकिन इस तरह से तो हम बनाते ही रह जाएंगे, बहुत काम बढ़ जाएगा हमारा। अगर मैं ये तो मैं अभी कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ ना, अगर ये मैं इस तरह से तीन बनाना शुरू कर दूं तो ये तो बड़ा मुश्किल नहीं हो जाएगा। समझ आई बात? हम सर एक क्वेश्चन में है। जी पूछ रहे हो? हम सर मैं कह रहा हूँ कि हम टोटल 3 इलेक्ट्रॉन्स क्यों नहीं शेयर कर रहे हैं? ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के पास कैपेसिटी नहीं है। देखो it only has 6 valence electrons ना, it can only gain 2 more electrons, there is no capacity, shell cannot hold more than 8 Yes. electrons. So how come oxygen will gain 3 electrons? Aluminium is losing 3 electrons, but oxygen cannot gain all the 3 electrons. One oxygen atom will only gain 2 electrons. Yes, Hiba? Sir, so where like that third electron goes? Yes, now Even yes, now here the formula comes into action. The formula will tell you कि वो थर्ड इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम का जा कहाँ है। देखो एक तो हम इस तरह से नहीं बनाएंगे, वी कैन नॉट मेक टू एल्यूमिनियम आयन थ्री ऑक्साइड आयन, ठीक है, ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा। हम क्या करेंगे इसको शो करने के लिए, भाई टू एल्यूमिनियम आयन आर सेम ना, आइडेंटिकल है, तो वी विल राइट टू बिफोर एल्यूमिनियम एंड थ्री बिफोर ऑक्साइड एज द फॉर्मूला सजेस्ट। फॉर्मूले में एल्यूमिनियम आयन आर टू ना, वी विल राइट टू विद एल्यूमिनियम एंड देयर थ्री ऑक्साइड आयन, सो वी विल राइट थ्री विद ऑक्साइड, ठीक है। तो उस बार यस हम लोग वैसे नहीं बनाएंगे, हम ऐसे ही बनाएंगे, we will write 2 with aluminum ion and 3 with oxide ion. Now your confusion is that aluminum atom has lost 3 electrons, however oxygen atom has only gained 2 electrons, so where did that one electron go? तो वो one electron ना फॉर्मूले से समझो ना, देखो we have 3 aluminum atoms each losing 3 electrons, 1 2 and 3. The second aluminum atom will also lose 3 electrons. The third aluminum atom will also lose 3 electrons. But the oxygen on the other hand cannot gain more than 2 electrons. अगर फर्स्ट वाला एल्यूमिनियम ऑक्सीजन को कहता है कि भाई 3 इलेक्ट्रॉन्स ले लो, एक्चुअली इनकी बॉन्डिंग जो है ना वो तभी होगी जब एल्यूमिनियम इज एबल टू लूज 3 इलेक्ट्रॉन एंड ऑक्सीजन शुड गेन ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीजन 2 ही लेगा, 2 से ज्यादा नहीं लेगा। तो एल्यूमिनियम कहता है कि मुझे बॉन्डिंग तभी करनी है जब मैं 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकूं, और वो 3 इलेक्ट्रॉन ऐसे ही लूज नहीं करेगा कि एक निकाल के फेंक दिया, वो जहां जा रहा है जाए, उसको कोई परवाह नहीं है, नहीं। एल्यूमिनियम हैज टू इंश्योर दैट इट्स ऑल 3 इलेक्ट्रॉन शुड बी गेन्ड बाय सम अदर एटम। तो ये बॉन्डिंग नहीं होगी इस तरह से जब तक एल्यूमिनियम का थर्ड इलेक्ट्रॉन कोई ना ले। तो ऑक्सीजन जो है एक और अपने जैसा एक ऑक्सीजन बुला लेता है, और वो उसको कहता है कि एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को दे दो, बट दिस ऑक्सीजन सेज कि नहीं मुझे तो 2 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, why would I settle down with only 1 electron? तो फिर एक और एल्यूमिनियम आ जाता है, वो कहता है कि चलो मैं दे देता हूँ 1 इलेक्ट्रॉन, बट दिस एल्यूमिनियम देन रियलाइजेस दैट इट हैज टू लूज 3 इलेक्ट्रॉन्स, तो उसको भी तीनों इलेक्ट्रॉन लूज करना है। तो इसीलिए एक और ऑक्सीजन होगा तो वो फिर वो इसके 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। सो फॉर 2 एल्यूमिनियम वी नीड 3 ऑक्सीजन, we do not have to think about it. The formula tells us that the formula is Al2O3. This explains that there must be 2 aluminum ion and 3 oxide ion. तो ये हमें सोचने की जरूरत ही नहीं है। समझ आई बात? इसलिए फॉर्मूला बनाना जरूरी है। yes, sir. Got it? सर तो इलेक्ट्रॉन जाएगा किधर? एक ऑक्सीजन देखो, फर्स्ट वाले एल्यूमिनियम के 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ गए? पहले वाले ऑक्सीजन के पास, और उसका 1 इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले ऑक्सीजन के पास। सेकंड वाले एल्यूमिनियम के 3 में से 1 इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन सेकंड वाले ऑक्सीजन के पास गया, बाकी के 2 थर्ड वाले ऑक्सीजन के पास गए। समझ आई? ओके सर, ऑल आर सेटल्ड। ओके सर। सर लेकिन ये हमें करके तो दिखाना नहीं पड़ेगा, सिर्फ हमें 2.3 नहीं लिखना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, ये तो मैं सिर्फ समझा रहा हूँ आपको, आपकी जो कंफ्यूजन है। आपको तो ओके सर, सिर्फ थैंक यू। ये बनाना है, ऊपर वाला फॉर्मूला बनाओगे और फॉर्मूला विल टेल यू कि एल्यूमिनियम के साथ 2 लगाना है, ऑक्सीजन के साथ 3 लगाना है। चार्ज ओवर एल्यूमिनियम इज 3 पॉजिटिव, चार्ज ओवर ऑक्साइड इज 2 नेगेटिव। दैट्स इट। सही है? ओके सर। सर जी सर हम सेपरेटली बना सकते हैं, लाइक जैसे 2 एल्यूमिनियम एटम्स एंड देन लाइक 3 बना ऑक्सीजन। सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो, बट दैट वुड बी अ वेस्ट ऑफ टाइम। ओके सर। ठीक है, तो आप इसी तरह से बनाओ। चलो, लेट्स मेक एन आयनिक बॉन्डिंग ऑफ लिथियम ऑक्साइड। ओके, नॉट लिथियम ऑक्साइड, लिथियम सल्फाइड बनाना। हम सर थोड़ा स्क्रॉल ऊपर करेंगे सर, जी एक ही जी। कॉपी में। अच्छा, ये जो हैंडआउट्स हमने ये मैं आज अपलोड भी कर दूंगा उस पे ना, क्लास नोट्स के नाम से, बॉन्डिंग के क्लास नोट्स वाले फोल्डर में। डन। ये सर। Okay. Now make the dot and cross diagram for lithium sulfide. Show only valence shell electrons. Show only valence shell. Yes, the Sir, formula is Li2S. जी जी बच्चे, अभी एग्जाम पे उन्होंने मेंशन किया होगा क्वेश्चन में कि सिर्फ बैलेंस शेल दिखाना है या फिर मतलब खुद ब खुद आप सिर्फ mentioned बैलेंस। mentioned always mentioned। ओके ठीक है, चलो इसकी बैलेंस शेल के साथ भी बनाते हैं, कंप्लीट शेल के साथ भी बना लेंगे। पहले बैलेंस शेल, पहले कंप्लीट शेल के साथ बना लें। चलो चलो पहले कंप्लीट शेल के साथ बना लेते हैं। तो फर्स्ट पहले हम कर लेते हैं शो ऑल द शेल्स। सर जब शेयरिंग वाली बात होगी देन वी विल ड्रॉ ओनली ओनली बैलेंस दैट शेल। लाइन। तो शेयरिंग में सब ओके बैलेंस शेल बनाते हैं। ओके शेयरिंग में बहुत मुश्किल हो जाती है, तो कभी भी नहीं कहता कि शो कंप्लीट शेल्स। आयनिक कंपाउंड में समटाइम्स ही सेज के शो कंप्लीट शेल, बट मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स ऑलवेज बैलेंस शेल्स। सर सल्फाइड इज सल्फर ना। Yes, sulfide is from sulfur. So first we will make the chemical formula of lithium sulfide. Lithium is from group 1, Li. Charge would be positive 1. And sulfide is from sulfur, which is from group 6, and the charge would be 2 negative. Now the common number between 1 and इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगी ना, 288 हो जाएगी, electronic configuration. 16 है Formula ना is तो it's 16. Atomic number is 16.
Lithium's atomic number is 3, sulfur's atomic number is 16. So lithium would be 2,1 and sulfur would be 2,8,6. If we make a lithium atom, it has 2 shells. But lithium loses its 1 electron. और उसके पास सिर्फ एक शेल रह जाएगा ना, तो वही उसका फर्स्ट शेल भी है, लास्ट शेल भी है. इनर शेल और कोई है ही नहीं लिथियम में. आफ्टर लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन, लिथियम इज लेफ्ट विद ओनली फर्स्ट शेल. एक ही शेल है उसका फिर. और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? सेकंड लास्ट शेल में लिथियम के 2 One. इलेक्ट्रॉन्स है ना. वो तो लूज हो गया. अब जो इसके पीछे वाला शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है ना. बस आप यहाँ पे मिस्टेक ये करते हो, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन शो कर देते हो, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन शो करना है बस. और जो चार्ज होगा लिथियम आयन पे वो पॉजिटिव 1 है. एंड सल्फर is 2,8,6, but sulfur will gain 6 electron. अच्छा, सल्फर के अगर कंप्लीट शेल शो करना है तो फर्स्ट शेल में we have 2 electrons and second shell we have 8 electrons, और जो आपका लास्ट शेल है that is the valence shell of sulfur, it is 6 electrons. हम तो सिर्फ वैलेंस शेल में इंटरेस्टेड है. अब इसमें हम लोग सारे शेल्स दिखा रहे हैं, बट आगे हमें जरूरत नहीं है दिखाने की. दैट्स इट. फर्स्ट शेल में वी हैव 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में वी हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7 8. इन द लास्ट शेल ऑफ सल्फर वी हैव 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स. इट विल गेन 2 electrons. Sulfur, see, lithium is losing 1 electron only, but sulfur atom needs 2 electrons, so it will gain 2 electrons. There are 2 lithium atoms, so 1 lithium atom is losing 1 electron. Sulfur will gain both of these electrons, 1 electron from each lithium atom. तो डॉट से दिखाए थे लिथियम के, तो सल्फर के वैलेंस शेल में जो 2 इलेक्ट्रॉन गेन हुए हैं वो फिर हम वो डॉट से ही दिखाएंगे. ठीक है, वो क्रॉस से नहीं दिखाएंगे फिर हम. लेकिन सर लिथियम से एक शेयर कर सकता है ना, तो उसने 2 कैसे शेयर किए? लिथियम शेयर नहीं कर रहा, लूज कर रहा है. शेयरिंग तो कुछ और है, ये तो ट्रांसफर चल रहा है, आयनिक बॉन्डिंग चल रही है. सर मतलब लिथियम ये सिर्फ एक ट्रांसफर. लूज कर सकता है. रिपीट करो क्वेश्चन. सर जब एक लूज कर सकता है तो यहाँ पे हमने 2 क्यों लूज किए? मतलब 2 को सल्फर को Exactly. ट्रांसफर. Now see the formula of lithium sulfide. How many lithium atoms are there? 2. 2 सर. ये आयनिक बॉन्डिंग कंप्लीट जब तक नहीं होगी, जब तक आप यहाँ पे 2 नहीं लिखोगे, बिकॉज sulfur will only make an ionic bond with lithium when sulfur atom gains 2 electrons. Otherwise sulfur नहीं करेगा ionic bonding. Now there are 2 lithium atoms ना, each will lose 1 electron, so sulfur altogether will gain 2 electrons, but lithium is losing only 1 electron. There are 2 lithium atoms. ठीक है, अब समझ आया फॉर्मूला मेकिंग क्यों जरूरी है आयनिक बॉन्ड की डॉट एंड क्रॉस बनाने के लिए. क्लियर है? आगे बढ़े. सर जी बेटा. सर हम लिथियम में 2 शेल्स भी बना सकते हैं, मतलब पहले में 2 लास्ट में 1, लाइक वो नहीं बना वो तो लूज सकते? हो गया ना. लास्ट शेल जो है वो तो उसमें 1 इलेक्ट्रॉन जो था वो तो लिथियम एटम में था. वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तभी तो +1 आयन बना है. वो लास्ट शेल तो वैसे ही खत्म हो गया ना. लिथियम एटम थोड़ी बना रहे हैं, अब तो लिथियम आयन बना रहे हैं. अगर आप लिथियम एटम बनाते तो उसमें आप सेकंड शेल का 1 इलेक्ट्रॉन शो करते. नाउ इट हैज लॉस्ट दैट इलेक्ट्रॉन, so there is no electron in the last shell, so no last shell. इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो शेल भी नहीं होगा. Got ओके it? सर. यस सर. But if he asks you to show only valence shell, तो फिर आप क्या करोगे? लिथियम तो वैसे ही रहेगा क्योंकि एक ही शेल है, वही वैलेंस शेल है. सर हमें वैलेंस शेल आफ्टर शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स करना है, सॉरी ट्रांसफरिंग इलेक्ट्रॉन्स, राइट?
यस, आफ्टर ट्रांसफर बताना है आपने, बिफोर ट्रांसफर तो वो हम समझने के लिए कर रहे थे। फाइनल डॉट एंड क्रॉस यू हैव टू शो इज आफ्टर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो जब ऐसे वैलेंस शेल शो करोगे तो लिथियम तो एज इट इज वही रहना है ना, उसके पास तो जो उसका फर्स्ट शेल है वही उसका लास्ट शेल है लिथियम आयन का। हाँ, फॉर सल्फर वी हैव शोन टू इनर शेल्स, तो उसकी कोई नीड नहीं होगी फिर बनाने की। उसके लिए फिर हम जो है वो आपका सिर्फ बैलेंस शेल शो करेंगे, लास्ट शेल शो करेंगे, उसमें ऑलरेडी 6 इलेक्ट्रॉन्स तो हैं सल्फर के पास, 2 इलेक्ट्रॉन उसने लिथियम से ले लिए हैं। सर जी बच्चे, ऐसा हो सकता है कि एक साथ लाइक 3 एटम्स सॉरी एलिमेंट्स लाइक इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर करे एक दूसरे को। आपके एग्जांपल दे सकते हैं? आप दोबारा रिपीट करोगे क्वेश्चन? सर मैं ये कह रही हूँ ऐसा हो सकता है कि लाइक 3 डिफरेंट एलिमेंट्स एक साथ लाइक इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर कर रहे हो। एग्जांपल है इसकी? हमारे कोर्स में नहीं है। देखिए मोलिकुलर आयन जो होता है ना, हमें उसकी डॉट एंड क्रॉस नहीं बनानी होता है। मतलब 3 डिफरेंट एलिमेंट्स हो सकते हैं लेकिन हम नहीं करेंगे। क्लियर? ओके सर, यस। मैं आपको उसका क्वेश्चन दिखाता हूँ किस तरह से पूछता है। ये लिख लिया है सबने? आगे कर दूं उसको? लिख तो नहीं रहा। सर आप हमें कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस दे दें, हम आयनिक बॉन्डिंग के। और यस आई विल गिव यू, आई विल गिव यू। आपको मैं क्वेश्चन बताता हूँ, प्रैक्टिस क्वेश्चंस। पहले मैं बता देता हूँ प्रैक्टिस क्वेश्चन ना। देखो, देयर इज अ हैंडआउट फॉर केमिकल बॉन्डिंग, उसमें पेज नंबर 9 पे वी हैव प्रैक्टिस क्वेश्चन। इसमें बस MgCl2 लिख लेना है यहाँ पे। ठीक है, विद द 11 प्रैक्टिस क्वेश्चन यू नीड टू मेक। सही है, अभी मैं और करवा रहा हूँ वैसे तो। चले आगे। यस सर। सर दिस इज होमवर्क। क्या जिसे होमवर्क गया तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, और ये हैंड आउट में है पेज नंबर 9 पे। एक मिनट दो मुझे, मैं खुद ही भेज देता हूँ। सर इसके अंदर तो आपने पहले से ही केमिकल फॉर्मूला बना के दिया हाँ जी, केमिकल फॉर्मूला मैंने बना के दिया हुआ है। अच्छा, ये चेक भी करवाना है होमवर्क, क्योंकि इसमें है। जो सर गलतियां कर एग्जाम्स में, सर एग्जाम्स में वो हमें खुद बना के देंगे या तो फिर? देखो, कभी कभार दे देते हैं बना के, कभी कभार नहीं देते, तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर बोथ। ओके। मैंने आपको ग्रुप पे सेंड कर दिया है ये। सही है, सर हमें आपको ग्रुप में ही सेंड कर देना ये होमवर्क। मैंने कर दिया है। ये हैंडआउट आपको ड्राइव लिंक पे मिल जाएगा। अब आप, आई डोंट नो, आप लोग ड्राइव लिंक तो एक्सेस कर पा रहे हो ना? आपको समझ आ गया किस तरह से चीजें ड्राइव लिंक से निकालनी है? जो आपका यस ड्राइव है सर। गूगल ड्राइव का, आई होप सबको पता है। एक बार मैं बता देता हूँ।
क्योंकि वो सारी चीजें हमारी उसमें ही अपलोड हो रही हैं। लास्ट क्लास का लेक्चर अपलोड नहीं हुआ हुआ अभी तक, बट वो आज हो जाएगा सब कुछ अपलोड, आज नहीं तो कल हो जाएगा। हमारा ड्राइव फोल्डर एक तो इस नाम से है, अगर किसी ने ज्वाइन नहीं किया हुआ और लिंक नहीं है तो मैसेज करके ले लेना। IG O लेवल केमिस्ट्री 2024। राइट नाउ वी आर स्टडिंग केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, इसमें क्लास नोट्स ये वो नोट्स हैं जो कि आप क्या कहते हैं, जो अभी हम लिख रहे हैं ना, ये वो नोट्स। ठीक है, ये अपडेट होते जाएंगे आफ्टर एवरी क्लास। वर्कशीट्स आर देयर, वो हम प्रैक्टिस करेंगे अभी। और रिकॉर्डेड लेक्चर्स अभी आज से मैं अपलोड करना शुरू कर दूंगा, क्योंकि बॉन्डिंग की फर्स्ट क्लास लास्ट क्लास जो थी वो फर्स्ट क्लास थी ना। अब आई स्टार्ट अपलोडिंग इट फ्रॉम टुमारो। और ये जो हैंडआउट मैं आपको दिखा रहा था ये भी अभी आपका अपलोड हो जाएगा इस पे। मेक श्योर यू फॉलो दिस ड्राइव लिंक वेरी रिलीजियसली। ठीक है, कोई सर चीज मुझे तो ये तो पूरा कर लो वहां से। जी। सर आपने बोला था रेडियो एक्टिव इज नॉट द पार्ट ऑफ आवर सिलेबस, बट सर देयर आर मैनी बेटा आवाज क्वेश्चंस आपकी डिस्टर्ब हो गई, दोबारा बोलो। sir, as you said that radioactive are not the part of our syllabus, but sir in chapter 1 Uses atomic of substance, radioactive isotopes are there। ये बोलो, बात पूरी करो अच्छा पहले। sir, but in chapter 1 there are many questions regarding radioactive isotopes. There only one sort, देखो रेडियो एक्टिव का वर्ड वो यूज करेगा, ठीक है, बट बिहाइंड वो प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन और आइसोटोप्स के साथ लेके जाएगा, रेडियो एक्टिव एंड नॉन रेडियो एक्टिव आइसोटोप। बट द ओनली क्वेश्चन फ्रॉम रेडियो एक्टिविटी आस्क्ड इज दैट इफ एनी sample of an element is releasing energy, it means that has to be a radioactive isotope. And some uses of the radioactive isotope you have to remember, like we studied cobalt 60 used in cancer treatment, that's it। उसके अलावा रेडियो Okay, एक्टिव का आपको और आगे, हाँ, नाम यूज हो सकता है बहुत ज्यादा जगहों पे रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स का, बट उसमें वो आपको सब sir, एटॉमिक पार्टिकल्स ही निकालने हैं। sir, स्कूल में हमारे टेस्ट किए थे उसमें पूछा था इंडस्ट्रियल यूज ऑफ रेडियो एक्टिव, तो सर उसके अंदर हमें माइनिंग वगैरह का लिखना था सर, ये पास से पूछ रही थी सवाल है मेरे। देखो वाटर लीकेज होता है इंडस्ट्रियल एक्टिविटी। अच्छा, जो एक और है यूरेनियम 235 का लिखा था पावर प्लांट जनरेशन। पावर प्लांट में जो यूज होता है ना टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज द इंडस्ट्रियल यूज ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप। इंडस्ट्री है ना वो पावर, बिजली बनाना। यस और हमेशा आप लोग एक बात याद रखो, हिबा मैंने भेज दिया ग्रुप पे लिंक। हमेशा आप एक बात याद रखो कि जब भी whenever you encounter any question that you find useful and you learn new information from it, make sure you incorporate that information in your lectures। लेक्चर जो आप नोट्स बना रहे हो ना, नोट टेकिंग कर रहे हो, जहाँ पे आपने रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स के बारे में पढ़ा है, जहाँ पे लिखा है उसी में जाके उसके आंसर को इनकॉर्पोरेट कर दो। ठीक है, आधी तैयारी बच्चे लेक्चर से हो रही है, आधी पास पेपर से हो रही है, तो जो जो आप क्वेश्चंस कर रहे हो वो उठा के इनकॉर्पोरेट कर दिया करो वहाँ पे। ठीक है, और क्वेश्चंस आप लोग पूछा करो व्हाट्सएप पे। जैसे अली ने मुझे कुछ क्वेश्चन भेजे थे, आई टुक लाइक 2 days टू रिप्लाई इट, बट अल्टीमेटली आई विल रिप्लाई। तो आपका की क्वेरी जो है ना वो अनआंसर्ड रहनी नहीं चाहिए, सब पूछना है आपको, मतलब एक दिन नहीं तो 2 दिन, 2 दिन नहीं तो तीसरे दिन आपको वो क्वेरी सॉल्व करनी ही है। पेंडिंग पे नहीं डालना, वरना एंड में ना बड़ा पाइल अप हो जाता है सब कुछ का। अच्छा, अभी हमें क्वेश्चंस करने हैं जरा कुछ ना पास पेपर से।
देखो, he is saying in this question oxygen reacts with magnesium to form magnesium oxide. Here he hasn't given the formula of magnesium oxide, मतलब वो आपको खुद बनाना है. Draw diagrams to show the complete electronic structure. Now you have to show the complete electronic structure and charges of both the ions present in magnesium oxide. इधर वो आयनिक बॉन्ड कंपाउंड बनाने के लिए नहीं कह रहा, डॉट एंड क्रॉस नहीं कह रहा वो आपको बनाने के लिए. You have to show the formula and the electronic structure. Electronic structure हम लोग electronic configuration को ही कहते हैं, ठीक है? Another name for electronic configuration. जब electronic configuration पढ़ी थी तो दो नाम लिखे थे. अब for magnesium, we know magnesium has an atomic number of 12. Its electronic configuration is 2,8,2. And oxygen has an atomic number of 8. Its electronic configuration is 2,6. Now magnesium, in order to get stable, it loses 2 electrons from its valence shell and gets a charge of 2 positive. Oxygen gains these 2 electrons and gets a charge of 2 negative. So you are supposed to write these electronic structures. अभी इसने डॉट एंड क्रॉस बनाने के लिए नहीं कही है, आगे देखते हैं कहाँ पे कहता है डॉट एंड क्रॉस बनाने के लिए. अली, एलिमेंट मिक्सर एंड कंपाउंड्स की वर्कशीट कोई सेपरेटली है नहीं, वो केमिकल बॉन्डिंग के ही पेपर में आपको मिलेगी एलिमेंट मिक्सर एंड कंपाउंड के क्वेश्चंस. देखिए उसी में इंक्लूड करे हुए मैंने, राइट? अच्छा, मैं डॉट एंड क्रॉस वाला क्वेश्चन आपको एक्चुअली दिखाना चाह रहा हूँ, जरा रुको. ये वाला सर ये वाला क्वेश्चन फिर से एक्सप्लेन कर दें. ये वाला सभी क्या है? जी सर. देखो इसमें कह रहा है ड्रॉ डायग्राम्स टू शो द कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर. अब आपने डायग्राम बनानी है इसमें. तो मैग्नीशियम विल लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम इट्स वैलेंस शेल. तो मैग्नीशियम आयन बनेगा तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? 2,8. और ऑक्सीजन विल लूज इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म ऑक्सीजन सॉरी विल गेन दीस 2 इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म 2,8, राइट? यहाँ तक बात सही है? जी. अब आप मैग्नीशियम आयन की डायग्राम कैसे बनाओगे? जैसे हमने डॉट एंड क्रॉस बनाई है वैसे ही बनाओगे, बस आयनिक बॉन्डिंग दिखाने की जरूरत नहीं है. इस चीज में फॉर्मूला भी नहीं बनाया मैंने, पर लेकिन फॉर्मूला आपको पता है ना. मैग्नीशियम ऑक्साइड का बनाओगे तो Mg2 पॉजिटिव, ऑक्साइड 2 नेगेटिव. कॉमन नंबर बिटवीन Mg2 and 2 is 2. फॉर्मूला क्या बनेगा? MgO. मैग्नीशियम के पास कितने शेल्स बचेंगे? 2 शेल्स. लास्ट शेल तो खत्म हो गया ना इसका. मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉन अगर आप डॉट से दिखा रहे हो, ये डायग्राम है इसकी. ऑक्सीजन फर्स्ट शेल 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड सेकंड शेल 6 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के अपने हैं. 1 2 3 4 5 6. 2 मैग्नीशियम. हाँ, 2 मैग्नीशियम के आ गए. मैग्नीशियम आयन एक ही है और ऑक्साइड आयन भी एक ही, क्योंकि फॉर्मूला MgO होता है ना, 1 मैग्नीशियम एंड 1 ऑक्सीजन. ओके सर. सर जी सर इस केस में हमें इक्वेशन लिखनी है, मतलब हर जब भी हम बनाएंगे. नहीं, इक्वेशन मांगी भी नहीं है. आगे हम इक्वेशन पढ़ेंगे, लेकिन अभी फिलहाल इस रिएक्शन इस क्वेश्चन में नहीं मांगी है. लेकिन जब हम पढ़ लेंगे आगे तो कुछ क्वेश्चंस आएंगे जिसमें इक्वेशन कहता है बनाने के लिए. ठीक है, तो हम इक्वेशन उस वक्त बनाएंगे. वैसे इसकी इक्वेशन क्या होगी? मैग्नीशियम Mg होता है, ऑक्सीजन गैस O2 एंड इट फॉर्म्स MgO. और फिर हम इसको बैलेंस भी करेंगे, ठीक है. बट फॉर नाउ अभी हमने ये रिएक्शंस पढ़े नहीं है, इसलिए अभी हम नहीं कर रहे इसको, ठीक है. तो सर हमें भी फॉर्मूला बनाना होगा, राइट? बस फॉर्मूला बना के देखना है. सर ये जो पास्ट पेपर्स हैं ये मिक्स है सारे, मतलब कोवेलेंट बॉन्डिंग, आयनिक बॉन्डिंग.
हेडिंग्स डली हुई हैं अलग अलग, पहले आयनिक के हैं फिर कोवेलेंट के हैं, कुछ मिक्स भी आ जाते हैं पार्ट्स ना, कुछ सेपरेट करना इम्पॉसिबल होता है उनको क्योंकि वो आधा पार्ट आयनिक का आधा कोवेलेंट का। तो आप ये जब करना स्टार्ट करोगे तो आयनिक बॉन्डिंग के पहले कर सकते हो, लेकिन प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स हम कोवेलेंट के बाद पढ़ेंगे। तो आपको थोड़ा सा अभी अगर इनको वर्कशीट्स करना स्टार्ट करोगे तो थोड़ी सी मुश्किल होगी, जैसे थोड़ा सा वेट कर लो, आफ्टर 2 क्लासेस यू विल बी एबल टू डू मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास इसमें कह रहे हैं ड्रॉ डॉट एंड क्रॉस डायग्राम फॉर सोडियम क्लोराइड शोइंग द इलेक्ट्रॉन ऑल द इलेक्ट्रॉन शेल्स। देखो यहाँ पे आ गया ऑल, अब आपको ऑल दिखाना है, आपको सिर्फ बैलेंस नहीं दिखाना। ठीक है, अब सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा? सोडियम इज ग्रुप from group 1 Na positive and in order to make all the shells you have to make the electronic structure first, right? Atomic number of chlorine is 17 2 8 7, for sodium is 11 to 2 8 1. Now sodium atom loses one electron from its valence shell, so it forms sodium plus 1 ion. हमें तो आयन बनाना है ना, डॉट एंड क्रॉस आयनिक बॉन्डिंग की बनानी है। क्लोरीन एटम विल गेन 1 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म 2 8 8, क्लोराइड आयन बन जाएगा वो। कंप्लीट शेल्स में सोडियम के आपको दोनों शेल्स दिखाने हैं। फर्स्ट शेल हैज 2 electrons, second shell has 8 electrons. And for chlorine, सोडियम के फर्स्ट शेल में 2 electrons हैं, सेकंड शेल में 8 electrons हैं। लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन जो था वो तो उसने लूज कर दिया, आ जाएगा पॉजिटिव 1। क्लोरीन ऑन द अदर हैंड हैज 1 2 and 3 shells. First shell has 2 electrons, second shell has 8 electrons, 1 2 3 4 5 6 7 8. Last shell in chlorine atom was 7 electrons ना, 7 तो उसके अपने थे, एक इलेक्ट्रॉन वो सोडियम से गेन करेगा तो एक हम डॉट से दिखाएंगे। कुछ पूछ रहे हो हसन? चार्जेस माइनस Na भी 1 है, Cl भी 1 है, तो हमने कोई नंबर नहीं लिखा इसके साथ। क्लियर है? जी सर। सर जी हम वो जैसे पिछला जो क्वेश्चन था रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हम एक और ऐसा सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि मुझे उसके कुछ स्टेप्स समझ नहीं आए। निकाल लेते हैं, मिल जाएगा। अच्छा क्वेश्चन 16 चलो वो क्वेश्चन उसमें क्या समझ नहीं आया बच्चे, पहले ये बताओ मुझे। मतलब सॉल्व करने का जो क्वेश्चन में मतलब स्टेप्स बोलो। ऑर्डर होता है सॉल्व करने का, समझ नहीं आया। पहले फॉर्मूला निकालना है। बेटा फॉर्मूला अगर नहीं भी निकालो ना तो इसमें आपको जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसने सिर्फ डायग्राम मांगी हुई थी, उसने आयनिक बॉन्डिंग नहीं बोला हुआ था शो करने के लिए। तो इन saying draw diagram to show the complete electronic structure. Electronic structure हम electronic configuration को कहते हैं, and charges of both the ions present. तो चार्ज तो ये है ना 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव, और इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर मैग्नीशियम आयन का 2,8 रह जाएगा क्योंकि इट विल लूज इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, और ऑक्सीजन का 2,8 हो जाएगा क्योंकि उसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन से इट विल गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स, राइट।
लेकिन जी सर सर। अगर हम अच्छा, फार्मूला बना दें तो कोई हर्ज तो नहीं है ना? नहीं कोई मसला नहीं है। अब देखो इसका ना आंसर कैसे दिया हुआ है एग्जामिनर ने, पहले वो देख लेते हैं ना, ताकि आपको और क्लियर हो जाए। मार्किंग की देख लेते हैं, आपको और समझ आ जाएगा। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट डी। देखो, you have to show the charges correct either on the diagram or written as Mg2 positive और O2 negative। ठीक है, हमने इस तरह से बनाया है ना, Mg2 पॉजिटिव, और इसकी पे फाइनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8 शो करी। करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर फॉर बोथ ऑक्सीजन का अगर आप ये शो कर दो 2 नेगेटिव एंड 2,6। लेकिन हमने थोड़ा एक्स्ट्रा काम किया, हमने मैग्नीशियम का आयन भी शो कर दिया डायग्राम बना के ऐसे। अगर आप ये नहीं भी बनाओगे तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में नीड नहीं है, क्योंकि उसने आयनिक डॉट इन क्रॉस ऑफ आयनिक कंपाउंड नहीं बोला। समझ आई बात? जी सर। सर अगर हम पूरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में तो कोई पूरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप एटम की बनाओगे, लेकिन फाइनल तो आपको आयन की शो करनी है। तो आपसे वो मांग तो सिर्फ आयन की रहा है एट दी एंड। अगर आप पूरी बनाओगे तो नीचे आपको आयन की शो करनी पड़ेगी। अगर आप पूरी नहीं भी शो कर रहे, सिर्फ डायरेक्टली आयन की शो कर रहे हो, तो आपसे जो रिक्वायरमेंट है एग्जामिनर की वो तो पूरी हो गई है। ठीक है, तो आप पूरी बना रहे हो तो अपने लिए बना रहे हो, उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको। ठीक है। अच्छा हेबा, स्टेट्स ऑफ मैटर है पहला चैप्टर हमारे पास, उसकी बात कर रहे हो चैप्टर 1 की। एज पर जो सिलेबस आईजीसीएसई का जो सिलेबस है वो स्टेट्स ऑफ मैटर है। मतलब यू हैव टू टॉक अबाउट सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस, और आपका गैस लॉस वगैरह, काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी, उसकी बात कर रहे हो ना? हाँ, वो हम पढ़ेंगे बेटा इस बॉन्डिंग के चैप्टर के बाद। वो मैं 3rd नंबर पे पढ़ाता हूँ दोनों कोर्सेज में। वो फर्स्ट टॉपिक है, स्टेट्स ऑफ मैटर इज द फर्स्ट टॉपिक इन ओ लेवल और आईजी का सिलेबस सेम है, तो उसमें वो दोनों उसमें फर्स्ट टॉपिक है स्टेट्स ऑफ मैटर। लेकिन मैं 3rd नंबर पे पढ़ाता हूँ उसको, उसका कोई रीजन है, वो आपको जब आप पढ़ोगे ना चीजें तो आपको समझ आ जाएगा। क्योंकि हम बात करते हैं सॉलिड्स की और उनके पार्टिकल्स की बात करते हैं, और हमें सॉलिड्स के पार्टिकल्स के बीच में जो बॉन्डिंग होती है उसका आइडिया ही नहीं होता, तो बहुत मुश्किल हो जाता है उसको समझना सही से। आई डोंट नो व्हाई इट इज ऑन फर्स्ट टॉपिक ऑफ द सिलेबस। पहले सिलेबस में एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री फर्स्ट टॉपिक हुआ करता था, वो सब लास्ट में पढ़ाते थे। और अब चलो शुक्र है जो नया सिलेबस आया उन्होंने एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री को एंड में डाल दिया, उसका एंड में ही पढ़ना बनता है। ओके सर। ठीक है, तो एक बार सिलेबस खोल के ऑर्गेनिक अपना प्लीज सब लोग देखना, और सिलेबस को रीड जरूर किया करो प्लीज। जी हसन। सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी है ना हमारी? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी है। देखो टॉपिक्स है ना, स्टेट्स ऑफ मैटर है तो हम 3rd नंबर पे पढ़ेंगे। एटम्स, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स है, वो हमने फर्स्ट नंबर पे पढ़ लिया। आइसोटोप्स जिसमें आ गए थे सारे। ठीक है, बाकी जो रिलेटिव अबंडेंसेस हैं आइसोटोप्स की वो भी हमने डिस्कस किया है, वो भी सिलेबस का पार्ट है। अक्सर स्टूडेंट छोड़ देते हैं उसको। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोटोप्स भी सिलेबस का पार्ट है। ठीक है, कोर में भी और सप्लीमेंट में, तो दोनों साइड बाय साइड दोनों पढ़ा करो। क्लियर है? आगे बढ़े। टेस्ट कैसा हुआ था वैसे आप लोगों का? हिबा, अबीहा, अली। सर इजी था, एक दो क्वेश्चन मुश्किल थे आई थिंक। सर अच्छा हुआ था। अच्छा हुआ था, नाइस। चलो, फर्स्ट टेस्ट था, लेट्स सी स्कोर। मुझे याद नहीं है सबका इंडिविजुअली, बट कल मैं शेयर करता हूँ तो फिर बात करते हैं।
है। अच्छा, कहाँ पे थे हम? सर ये चैप्टर जब हमारा खत्म हो जाएगा तो मतलब हमारे जो आईजीसीएसई की बुक में जो चैप्टर 2 है वो भी फिनिश हो जाएगा, राइट? क्योंकि आप कहते जैसे यहाँ पर हाफ हाफ टॉपिक्स आप करवा रहे हैं लाइक बीच में से। नहीं, बीच में से जो है ना स्टेट्स ऑफ मैटर अभी तो हमने टच ही नहीं किया। एटम, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स वाला जो हमारा चैप्टर है ना, वो जा रहा था आइसोटोप्स तक। ठीक है, वो हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर के नाम से पूरा कवर कर लिया। उसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड periodicity भी था। ठीक है, तो वो हमने पूरा कवर कर लिया, वो आपका पूरा हो गया। अब दूसरा जो हमारे पास बेसिकली जो चैप्टर है ना सिलेबस के हिसाब से, वो है एटम्स, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। उसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर भी आ जाता है। हमने उसको एटॉमिक स्ट्रक्चर का नाम बना के पढ़ा। वो किसी भी सिलेबस में एटॉमिक स्ट्रक्चर के नाम से नहीं है, वो बुक्स में एटॉमिक स्ट्रक्चर के नाम से होता है, तो हमने वो उसको एटॉमिक स्ट्रक्चर के नाम से बनाया गया। फिर हमने एलिमेंट, मिक्सचर एंड कंपाउंड पढ़ा, वो भी सिलेबस का सेकंड टॉपिक में ही आता है। ठीक है, और जो हम केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे हैं वो भी सिलेबस के हिसाब से सेकंड टॉपिक में ही आता है। तो सेकंड टॉपिक सिलेबस का बहुत बड़ा है, इसलिए हमने इसको ब्रेक डाउन करके ना 3 चैप्टर्स में बनाया हुआ है। तो जब आप ये सारा पढ़ लोगे ना, एटॉमिक स्ट्रक्चर हमने पढ़ा, एलिमेंट, मिक्सचर एंड कंपाउंड पढ़ा, और हम केमिकल बॉन्डिंग जब पढ़ेंगे तो एज पर दिस सिलेबस वी विल बी डन विद सेकंड टॉपिक ऑफ सिलेबस ओनली। फिर जब हम फोर्थ टॉपिक पढ़ेंगे ना अपना स्टेट्स ऑफ मैटर, तो सिलेबस का फर्स्ट टॉपिक हो जाएगा पूरा। ठीक है, ये सेकंड टॉपिक सिलेबस का बहुत बड़ा है, इसको इसलिए मैंने ब्रेक करा हुआ है 3 में, ताकि तीनों अलग अलग हैंड आउट हो और अलग अलग फोकस करके पढ़े। क्लियर? समझ आई बात? यस सर। अच्छा, हमारा टाइम खत्म हो रहा है। चलो, अब बाकी क्वेश्चन ना हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ठीक है, एक जरा ये इसकी पिक्चर मैं भेज देता हूँ, ये जरा मुझे बना के अभी सेंड कर दो ना सब। अभी भेज रहा है? मैं भेज रहा हूँ, भेज रहा सर इसके अंदर सिर्फ डॉट एंड क्रॉस डायग्राम बतानी है। हूँ। जी, डॉट इन क्रॉस है अरेंजमेंट ऑफ आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स ओनली, कंप्लीट शेल दिखाने नहीं है। सोडियम ऑक्साइड के द चार्जेस ऑफ द आयंस एंड द फार्मूला ऑफ द सोडियम ऑक्साइड। तो उस फार्मूला ऑफ द सोडियम ऑक्साइड तो हम पहले, सबसे ओके पहले वही बनाएंगे। सर आपको करके भेजना है? हाँ, मुझे करके भेज दो, सब पिक्चर्स भेज दो, ग्रुप पे भेज दो तो ज्यादा बेटर है, ताकि सब एक दूसरे का करेक्ट भी कर सकें। ठीक है, ठीक है सर। गलतियां भी पता लग जाएंगी, कॉमन मिस्टेक्स क्या करते हैं सब इसमें। जी बेटा। सर इसका फॉर्मूला Na2O बनेगा। जी, सोडियम ऑक्साइड इज Na2O। ओके सर। ठीक है, ये मुझे करके जरा ग्रुप पे ही भेज देना, वरना मैसेज बहुत सारे आगे पीछे हो जाएंगे ना, सबका एक साथ चेक हो जाएगा फिर। चलो, जा सकते हो अभी आप लोग। अल्लाह हाफिज़।